Hello student, today we will read second chapter of Hornbill. The chapter name is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. The writer name is Gordon Cook and Alan East. The chapter name is We Are Not Afraid to Die. हमें मौत से डर नहीं लगता है, हम मौत से डरते नहीं हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब लोग साथ में रह सकते हैं तो हमें मौत से डर नहीं लगता है। हम सब लोग, हमारी फैमिली अगर एक साथ है तो मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। दिस चैप्टर इज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू रीड अबाउट द ऑथर. The author Gordon Cook is a Canadian Olympic sailor. Gordon Cook is a Canadian Olympic sailor. He was born on 3rd December 1978 at Toronto in Canada. He would sail for the Royal Canadian Yacht Club. Alan East was a legal trainer. He was born on 18 November 1923. So there is a huge difference between the age of Alan and the age of Gordon Cook. Whereas Alan was born in 1923 and Gordon Cook is born in 1978. There is 53 years age gap between these two writers, Gordon Cook and Alan East. Alan East was a legal trainer. He was born on 18 November 1923 at East Derry in New Hampshire. He founded a multi-academy trust, Central Academies Trust. There is some factor about the lesson. Let's read this. A businessman who was 30 years old and his wife had a dream. They wanted to undertake the same voyage round the world as the explorer Captain James Cook undertook 200 years ago. In this lesson, let's us read how a mighty wave broke over them and damaged the ship, but they struggled on and were saved. How? Let's read the chapter. In July 1976, जुलाई 1976 की बात है, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Susan 7, and I set sail from the Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by the Captain James Cook. मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा जोनाथन जो कि 6 वर्ष का था, बेटी सुजैन जो कि 7 वर्ष की थी, और मैंने उन लोगों के साथ प्लाईमाउथ से यानी इंग्लैंड से पूरे संसार का एक चक्कर लगाने का सोचा। ऐसा ही काम 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स ने किया था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ये सबसे लंबा समय था, मैरी एंड आई, a 37 years old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in British water. मैं और मेरी पत्नी, मैं 37 इयर्स का 37 वर्ष का था, अपनी पत्नी के साथ, मेरी के साथ कई वर्षों से उस प्रसिद्ध खोजकर्ताओं का जो पहले खोज कर चुके थे संसार की, या वाटर यानी पानी के जरिए, समुद्र के जरिए पूरे संसार का भ्रमण कर चुके थे, हम लोग भी उनका अनुसरण करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, हम लोगों ने जो स्वप्न देखा था, क्या स्वप्न देखा था कि हम लोग समुद्र गामी जो कौशल है उसको तेज बनाएंगे और अपना अधिक से अधिक समय ब्रिटेन के समुद्रों में व्यतीत करेंगे। पिछले 16 वर्षों से मैं और मेरी पत्नी मेरे साथ थे।
our boat wave walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the best weather we could find. हमारी नाव जिसका नाम था वेव वॉकर, वेव लहरें, वॉकर टहलने वाली, चलने वाली, लहरों पर चलने वाली, उस नाव का नाम था वेव वॉकर। That's length 23 मीटर, जिसकी लंबाई क्या थी 23 मीटर, about 70 फीट। 7 खंड की बिल्डिंग बन जाए इतनी लंबी इतनी ऊंची क्या थी नाव। 30 टन, 30 टन की। How many kilograms in 1 ton? 1000 kilogram equal 1 ton, and that boat was about 30 ton, about 3000 kg। तो 30 टन की वो भारी लकड़ी से, मोटी लकड़ी से बनी हुई सुंदर सी वो नाव की ब्यूटीफुल बोट्स has been purchased, professionally built, and we had spent months fitting it out and testing in the roughest weather we could find। और उसका टेस्ट करते रहे हम लोग महीनों कि यदि मौसम खराब हो जाए, यदि जो है वर्षा ऋतु आ जाए, कभी जो है मौसम में परिवर्तन आ जाए, तो किस तरह से ये तूफानी मौसम को झेल सकती है, इस तरह का उसको परखने का कार्य पिछले कई महीनों से मैं और मेरी पत्नी एक साथ कर रहे थे। The first leg of our planned 3 years 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। और जैसे ही 3 वर्ष की The first leg of our planned 3 years 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। 3 वर्ष में 1,05,000 किलोमीटर लंबी जो यात्रा थी, हम लोग ने जो यात्रा आयोजित की थी प्रथम चरण में, यानी पहली बार में अफ्रीका के पश्चिमी तट पे एक शहर के पास हम लोगों का वो समय गुजरा, और उस शहर का नाम था केप टाउन। केप टाउन तक हंसी खुशी के साथ वो समय व्यतीत हो गया। There before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Wiggle and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean। वहाँ पूर्व की ओर बढ़ने पर, ईस्ट की तरफ बढ़ने पर हमने विश्व के जो सबसे तूफानी, सबसे ज्यादा जहाँ पर तूफान आता है, कहाँ आता है, हिंद महासागर में। हमारा जो इंडियन ओशियन है, यहाँ सबसे ज्यादा तूफान आते हैं, सबसे ज्यादा जो है खतरे की जगह है नाविकों के लिए। उस खतरे को पार करते हुए दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने के लिए 2 नाविक के लिए अमेरिकी लैरी विजिल और स्विस हर्ब सैगलर ने उन तूफानों का सामना किया था, और उनको जो है हम अपने साथ लेकर आए थे। तो जो तूफान थे उनका नाम रखा गया था, अलग अलग उन नामों से उन तूफानों को पुकारा जाता था। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales। और केप टाउन से चलने के दूसरे दिन हमारा मुकाबला प्रबल तूफानों से, बड़े बड़े तूफानों से होना प्रारंभ हो गया। For the next few weeks, they blew continuously। और अगले कुछ हफ्तों तक ये तूफान चलते रहे, लगातार तूफानी हवाएं चलती रही, और ये पति पत्नी और बच्चे इनका उस तूफानी हवाओं का सामना करते रहे। वो तूफानी हवाएं कहाँ पर आ रही थी? इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में वो तूफानी हवाएं चल रही थी। Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our main mast।
तूफानों की मुझे चिंता नहीं थी, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, लेकिन जो उस तूफानों की लहरें थीं उनका आकार, उनका जो साइज था बहुत भयावह था, उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, लगभग 15 मीटर तक वो ऊंचाई मेरे जो नाव का जो सिरा था, जो किनारा था, उसको छू रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन और 25 दिसंबर तक हम लोग केप टाउन से 35 किलोमीटर पूर्व की तरफ यानी भारतीय महाद्वीप की तरफ यानी कि हिंद महासागर की तरफ आगे बढ़ गए थे। डिस्पाइट atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. जबकि मौसम बहुत खराब था, मौसम खराब होने के बाद भी हमने बहुत शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से छुट्टियां बिताई, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने क्रिसमस का पेड़ भी ले रखा था, लगा रखा था, जिसके साथ हम लोगों ने समय बिताया। न्यू ईयर डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, न्यू ईयर भी आ गया, नया वर्ष भी आ गया, लेकिन मौसम में कोई परिवर्तन, कोई सुधार ना हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम लोगों को पता था कि मौसम बहुत जल्दी बदलने वाला है, सुधार आने वाला है। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन मौसम बदला, और कैसा बदला? ऐसा बदला कि ये पहले से भी बुरा हो गया। बैड चेंज फॉर द वर्स, बैड टू वर्स, बुरे से और बुरा हो गया। बैड से बेटर नहीं हुआ, बैड से क्या हो गया? वर्स हो गया, यानी पहले से भी बदतर, पहले से भी खराब हो गया। हम लोगों को जो उम्मीद थी कि मौसम बदलने वाला है, वेदर बदल जाएगा, वेदर बदला तो, लेकिन और ज्यादा खराब हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। 2 जनवरी को न्यू ईयर के सेकेंड डे की बात हो रही है, जब डाउन का समय था, सूर्य का उगने का समय था, सूर्य के उगने से पहले के टाइम को डॉन बोलते हैं। एट डॉन, सूर्य के उगने के समय की बात हो रही है, 2 जनवरी की बात है। वेव्स वर जाइगेंटिक, तो जो वेव्स थी, जो लहरें थी, बहुत बड़ी बड़ी हो गई, बहुत खतरनाक दिखने लगी, बहुत भयंकर दिखने लगी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स। हम केवल एक छोटा तिकोना पाल लेकर, यानी तिकोने का जो तिरपाल होता है, तिरपाल आपने देखा होगा, उसको लेकर यात्रा कर रहे थे। As the ship rose to top of each wave, we could see endless enormous sea rolling toward us and screaming of the wind. Spray was painful to the ears. हम लोग उस पाल को लेकर, तिरपाल को लेकर यात्रा कर रहे थे, और हमारी जो स्पीड थी नाव चलाने की, वो बहुत ही स्लो थी। जब नाव प्रत्येक लहर की चोटी तक पहुंचती थी, तो हमें अपने अंततः जो समुद्र है, जो बहुत बड़ा सागर है, वो अपनी ओर आता दिखाई देता था कि वो समुद्र हम लोग की नाव के अंदर समा जाएगा और हमारी नाव डूब जाएगी। हम लोग उसको देख सकते थे, महसूस कर सकते थे, और चीखती हुई जो हवाएं थी, जो पवनें थी, उनकी फुहार हमारे कानों तक पहुंच सकती थी। टू स्लो द बोट डाउन, वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब and lashed a heavy mooring a rope in a loop across the stern. हमने नाव की गति को धीमा करने का सोचा, ताकि जो है थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। नाव को बांधने वाली जो भारी रस्सी थी, उसका फन्ना बनाकर नाव के पिछले भाग में बांध दिया। Then we double lash everything went through our life raft drill attached lifeline don't wine skills and life jacket and waited। और उसके बाद जब हमने रस्सी के फंदे को पीछे नाव में बांध दिया, प्रत्येक चीज को दोहरा के डबल गांठ लगा दी, और अपने जीवन के जो रक्षा के बेड़े थे, जो आपने
देखा होगा लाइफ जैकेट होती है, लाइफ जैकेट को पहन लिया हम लोगों ने और जलरोधक जो कपड़े थे और लाइफ जैकेट पहन ली तथा प्रतीक्षा करने लगे ताकि जो रक्षक बेड़े हैं, जो बचाने वाले दल हैं, वो हम लोगों को बचाने के लिए शायद समय पर पहुंच जाए और उन सबका वहाँ पर हम लोग प्रतीक्षा करने लगे। तो 2 जनवरी की ये बात है जिस टाइम पर सूर्योदय का समय था, सुबह का टाइम था, लहरें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से लहरें बड़ी बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से जो उसके पवनों के साउंड थे, जो हवाओं की जो ध्वनि थी वो कानों तक पहुंच रही थी छींकती हुई। हम लोगों ने रस्सी का फंदा बनाकर जो है वहाँ पर बांध दिया था और लाइफ जैकेट पहन ली थी और लोगों की प्रतीक्षा करने लगे ताकि लोग कभी जो अगर हम लोग डूबने भी लगे और लोग आए तो हम लोगों को वहाँ से बचा सके। That is the end of paragraph number 6. The next video we will discuss the remaining portion of this chapter. If you have any problem, please comment in the comment box. Thank you.